सर आवाज नाही येते. हॅलो. ओम. हा येस आता येते आता येते. ओके ओके ओके. आपल्याला हे मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टंट बघायचं आहे. काल आपण मोलल एलिव्हेशन कॉन्स्टंट बघितलं. कल हमने एक मोलल कॉन्स्टंट देखा था. आज जो है दैट इज द show that the thermodynamically the depression of the freezing point is a colligative property derived from thermodynamic principle. The relation delta Tf is equal to Kf into m. M is a small one. Okay, show graphically the depression of the freezing point of the solvent due to addition of the non-volatile solid. Obtain an expression correlating the molar mass of solid with the depression in the freezing point. Okay, so first of all we will define about the freezing point. You should remember the freezing point. Freezing point is nothing but the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to that of the solid into which the liquid freezes under an external pressure of the 1 atmosphere. मतलब जहाँ पे liquid vapor pressure of liquid becomes equal to that of the solid. मतलब क्या, वेपर प्रेशर वो लिक्विड का इतना चाहिए कि वो सॉलिड के बराबर चाहिए कि जिसका फ्रीज होने वाला है, लिक्विड जहाँ पे फ्रीज होने वाला है बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द 1 atmosphere. Okay, this is an definition of the freezing point. ये ध्यान में रखना है. So if it will come for the MCQ purpose, when the non-volatile electrolyte is dissolved in the solvent, the vapor pressure of solvent is lowered. Consequently, the solution freezes at the temperature below the freezing point of the pure solvent. वहाँ पे क्या था, अलग था पहले केस में. पहले केस में क्या था, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो आपको उसका वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, लोअर होने वाला है. मगर वेपर प्रेशर लोअर होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, उधर ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है. ये ध्यान में रखना है. ओके, then consequently solution freezes at the temperature below the freezing point of the pure solvent and it can be seen from the graph of the वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है, आप देखेंगे यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज देयर. पहला आप देखेंगे एक कर्व है, ए बी कर्व है. ए बी कर्व आपको बता रहा है कि जहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट आर दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है. पहला कर्व जो है मतलब इसके बाद में आप देखेंगे ई एफ. ई एफ इज द सॉल्यूशन एंड सी डी इज फॉर द लिक्विड सॉल्वेंट. अब यहाँ पे आप 3 पॉइंट नजर आ रहे होंगे आपको, बी, E and G. These 3 points are there. You can see. जहां पे आपको प्रेशर टेम्परेचर अलग नजर आ रहा है फॉर तीनों भी पॉइंट के लिए. मतलब ये PS, P0, P. P और P0 आपको पता है, PS आपको पता रहना चाहिए. PS इज नथिंग बट द सब्लिमेशन का जो प्रेशर है वो. ऐसे में कर्व AB जो है, इट रिप्रेजेंट्स द सब्लिमेशन कर्व ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट. कर्व CD जो है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट. और कर्व EF जो है, that curve EF is nothing but the vapor pressure curve of the solution. T0 is the freezing point of the pure solvent. The depression of the freezing point of a solvent is delta TF is equal to T0 minus T. Okay. Okay. Now this is the equation number 1. Now we have to consider the thing. Let it corresponds to the vapor pressure of the solid and the pure liquid solvent at T0. Then let
P be the vapor pressure of the solid wait, huh? Okay. Now see here, let PS will be there. ये correction था इसमें, यहाँ पे missing था. Okay. Let PS corresponds to the vapor pressure of the solid and the pure liquid solvent at T0. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि PS कहाँ पे है. PS ओके कहाँ पे करस्पॉन्ड करना है, T0 पे करस्पॉन्ड कर रहा है. तो यू हैव टू नोट दिस थिंग वेरी वेल. ओके ये आपका T0 हो गया. देन P बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड solvent and the solution at temperature T. And last, let P0 be the vapor pressure of the pure supercooled liquid at temperature T. That is nothing but a point G. यहाँ पे आप तीनों भी देख सकते हो, जो डायग्राम में वो लिखा है. ओके since point B and G lies on the vapor pressure of a pure solvent. आप B and G point देखेंगे यहाँ पे. B and G point कहाँ पे, B, this is the B point and this is the G point. Okay, this is lies on this particular वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द क्लैपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन. अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्लैपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन लाएंगे. यहाँ पे P जो है P0 को रिप्लेस करेंगे PS P0 से डेल्टा HP बाय R 1/T minus 1/T0. सिंप्लीफाई करेंगे ln PS by P0 is equal to delta HP by R T0 minus T/T0, where delta HP is the heat of vaporization of the pure solvent. Similarly, point B and E lies on the curve AB, that is the sublimation curve of the solid solvent according to the Clapeyron-Classius equation. अभी हम क्लैपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन यूज करेंगे फिर से. आई बी एंड ई पॉइंट लिया है. बी एंड ई पॉइंट कहाँ पे है, सब्लिमेशन कर्व पे. सब्लिमेशन कर्व कौन सा है, AB. AB इज अ सब्लिमेशन कर्व. ऐसे में और सब्लिमेशन कर्व के ऊपर जो पॉइंट है दैट इज अ बी एंड ई, वो पॉइंट आप लेना है. बी एंड ई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसके लिए दिए हुए कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे है. अकॉर्डिंग टू द क्लैपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन ऑफ PS एंड P आता है. पहले केस में PS एंड P0 आया, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे यू विल गेट क्लैपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन लाइक दिस डेल्टा HS. Okay, after putting these things you will get this formula. सी अकॉर्डिंग टू द क्लैपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन हम दो अलग अलग कर्व के लिए अप्लाई करेंगे. फिर अभी हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डेल्टा HP मिल रहा है. अभी डेल्टा HP इसलिए मिल रहा है कि वहाँ पे सॉल्वेंट है, बराबर है. और दूसरा जो कर्व हमने किया कि सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन में डेल्टा HS है, हीट ऑफ सब्लिमेशन आएंगी. देन ऑन सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन 3, अभी हम इसको क्या करने वाले, सब्सट्रैक्ट करने वाले. आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन you will get another equation ln PS upon P minus ln PS by P0 is equal to. अभी आप देखेंगे कि इसको हमने क्या किया है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको फाइनल इक्वेशन मिलने वाला है दिस वन. ओके, देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे. अभी आपको पता है अभी जब रेशो रहता है तब ln PS minus ln P,
माइनस एल एन पी एस माइनस एल एन पी जीरो, अब ये माइनस एल एन पी जीरो उसको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/r, अब यहाँ पे इससे कॉमन टर्म हम एक साथ लेंगे, टी जीरो माइनस टी अपॉन टी टी जीरो, में वन स्टेप इज मिसिंग, जस्ट आई एम करेक्टिंग दैट, मतलब वो करेक्ट करके लेते। यहाँ पे बाद में होने वाला है। ओके, ये आपका है डेल्टा एच एस अपॉन डेल्टा एच वी, बट सिंस this delta hs minus delta hu is nothing but a delta hf, therefore lnp0 minus lnp is equal to, अब यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगी। असल में क्या कॉमन टर्म है वहां पे, lnps कॉमन है, वो कट आउट हो जाएंगी, तो बचेगा कि lnp0 माइनस lnp डेल्टा hf, राइट। अभी डेल्टा hf क्यों आया, इसके लिए डेल्टा hf आया बाय r t0 माइनस टी अपॉन tt0, ये सेम आपका इक्वेशन आएगा lnp0 बाय p इज इक्वल टू डेल्टा hf अपॉन r t0 माइनस t अपॉन tt0, where delta hf is the heat of fusion which is equal to delta hs minus delta hv, वो हमने ऑलरेडी लिखा है वहां पे, lnp0 बाय p इज इक्वल टू माइनस डेल्टा hf बाय r डेल्टा tf अपॉन tt0, अभी t0 माइनस t क्या है, डेल्टा tf है, वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन फिर से वही है, t अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू t0, तो ln p0 अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा hf अपॉन r डेल्टा tf अपॉन t0 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ। फिर से सेम स्टेप है जो हमने अर्लियर की थी, आप चाहिए तो उसको देख सकते हैं, सेम करना है। आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग आपको फाइनल मिलेगा डेल्टा tf इज इक्वल टू rt0 स्क्वायर बाय डेल्टा hf x2, these all r t0 and delta hf are constant, hence the depression of freezing point of a solvent is directly proportional to the mole fraction of the solvent and independent on the nature of the solid, hence the depression of the freezing point is a colligative property। okay, the mole fraction again आपको कोरिलेट करना है, कोरिलेट करेंगे उसको तो फिर से आपको डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी जीरो स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच एफ, वहां पे डेल्टा टी बी था, यहाँ पे डेल्टा टी एफ है, ये ध्यान में रखो, एफ की जगह पे बी था, सेम इक्वेशन है, नो चेंज एट ऑल, सिर्फ वहां पे सिर्फ जो है सब्सट्रैक्शन स्टेप एडिशन है यहाँ पे, और वहां पे नहीं थी। ऐसे में सेम इक्वेशन आपको मिलने वाला है के एफ इज द कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट आपको मिल जाएगा Okay, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन वैसी है, इट कैन बी द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 1 किलोमोल ऑफ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट, दैट इज द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 1 मोलर सॉल्यूशन। वहां पे क्या था, एलिवेशन ऑफ द 1 मोलर सॉल्यूशन, अब ये क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट of that particular 1 molar solution, elevation in the boiling point of the 1 molar solution था, और ये क्या है, depression of the freezing point of the 1 molar solution। इतना ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। और मॉलिक्यूलर वेट सेम फॉर्मूला है, Kb के जगह पे Kf आएगा। ओके, इतना ही उसमें चेंजेस है। ये आपके दोनों इक्वेशन जो डेरिवेशन से सेम है, इसमें से एक डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में आता है, ऐसे में वन डेरिवेशन इज कमिंग फॉर द एग्जाम, प्लीज गो थ्रू इट। अगर कुछ समझता नहीं है तो मैं और समझाऊंगा। Here we will stop. Thank you.